4 minus 2. Very simple output, 2. So you understand, you are giving an input to the computer and it's giving you a desired output. It's calculating, it's processing the information you're giving it, and it's giving you the desired output. Right, let's just go with the multiplication. Now in multiplication, you use an asterisk. Okay, so that is basically 4 into 4, which gives you 16. Same with the division, 4 divided by 2, it gives you 2. Right, so बहुत बेसिक है. फाइल अगर जैसी आपको मिलेगा, you all can just play around with it. अपने हिसाब से inputs डाल सकते हो just to get a hang of what coding looks like. This is like very basic level of it. We'll proceed to a higher level. Now coming to variables. अभी variables क्या होते हैं? I'll relate a lot of these topics to the mathematics that you actually have learned in school, so that it becomes easier for you guys to relate to it and understand it better. So variables में maths में we have variables, right? X, Y, Z. We have polynomial equations, a square, b, etc. Similarly, जैसे maths में हम variables use करते हैं and we assign a value to it, right? We use x equal to 10, let's say, y is equal to 5. That way we use these values and the same concept in Python as well. So suppose I'm writing a is equal to 4. A is a variable here and I'm assigning a value 4 to it. So I'm just simply writing it a is equal to 4. And if I want to print that, now print statement is like a very basic syntax for you. It's basically for you to see the output. It makes it visible to you what it's actually generating. The print statement mein you basically have to write print and then parenthesis and then the a. Why a? Because a की value हमें a 4 assign की है and it's a variable. So let's just remove this for a second. And if I run this code, it'll print 4. Because print अगर मैं a कर रही हूँ तो उसकी जो value उसको assign किया है, that it will print. Let's just go back to this. So variables का काफ़ी easy concept है. It's used to make your code more readable. Now how readable? You can say, let's suppose, ये तो अभी बहुत basic example है. Let's say if you want to find out the area of the circle. अभी area of the circle में definitely pi r square use होता है. But you cannot always write pi into, let's say radius is 5. So pi into pi into 5 into 5. Right? What if you always have to change the radius again and again? If the other person asks you to change the radius, you can't just keep changing the value. What you can do is assign a variable to that radius and then change the value. So if I'm writing radius, let's say 5, and if someone tells me कि नहीं, don't add 5, make it 6. So make radius लिखूंगी, radius equal to 6, and then area equal to pi into radius, right? That way your code makes it looks more readable. पहले तो it makes it look more organized because variables are there for you to understand कि ये value क्या represent कर रहा है. Right? Not everyone knows कि okay radius की value अगर 5 है तो 5 क्या represent कर रहा है. You know that, but the other person might not know. So for that we use the variables, and also for the reusability. Means अगर मुझे radius में अगर +5 करना है, तो I can easily assign radius +5. I don't have to calculate the value again and again to process it. So that's just the basic concept of why we use variables, and that's similar to how we use that in mathematics as well. Now coming to print type A. This means अभी हर एक like maths में आप integers use करते हो, decimals use करते हो, complex numbers use करते हो. What are those? Those are the categories, right? Number system के. Similarly, coding में you have categories, you have data types. इसमें अभी since you know a is equal to 4, we know 4 is an integer, right? Integers can be negative, positive, whole numbers. I know 4 is an integer. So when I print this, this is basically to find what type of number am I assigning to the variable. तो अगर मुझे a का type जानना है, I'll simply write this, and if I run this, I'll get the class as integer, because integer
इसलिए क्योंकि a is 4 and 4 is an integer. I'm hoping you guys are catching up. So yes. ओके, मूविंग ऑन. ये तो था सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे हमने ए ही डाला था सिर्फ. बट व्हाट इफ दो वेरिएबल्स हैं? ज़रूरी थोड़ी ना एक ही वेरिएबल से हम काम करेंगे, राइट? दो से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. सो फॉर दैट इजी कंसेप्ट, ए कॉमा मैंने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, एक्स. सो ए कॉमा एक्स दो वेरिएबल्स हैं, उसकी मैंने वैल्यूज असाइन की है 4,9,000. Now these are the basically, if you see it वैसे तो it basically means a is equal to 4, x is equal to 9,000. Now if I want to print these numbers, what I will do is print a and print x. That way it will print me the value of a नको. and it will print me the value of x. मला पण कोणी आणलं. So माझी तर मम्मी हे एवढं विचारायला तिला सांभाळण्यात म्हणजे सुखी केली तर काय. can can someone mute themselves? I think someone's okay. सो ये बेसिक ओवरव्यू था कैसे वेरिएबल्स वर्क करते हैं. अ शॉर्ट नोट, वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन लोअर केस ए टू जेड और अपर केस ए टू जेड alphabets or 0 to 9 digits and some special character as underscore, but must always begin by a letter. This is common sense whenever you are saving a file in your computer. You don't start with 0 underscore my resume, right? You always go with the letters first and then proceed with the digits if whatever you like to follow. So variables हमेशा letter से start होगा. And most importantly, conventionally we use small case. Okay, we use variable names as small cases. Obviously you can use the uppercase as well, but thing with variables is that they're case sensitive. So if I'm writing area with a small a, let's just say, ओके ऑल्सो अगर पाइथन में आपको कुछ कमेंट ऐड करना होता है तो यू यूज अ हैशटैग. Now, what this hashtag does is that it gives you this advantage of adding a side note to your code. So, suppose even if you're like studying normal books, so you do add a sticky paper or something, right? Sticky note, just to add in information of what the entire page means. सेम वे सिमिलरली इधर भी हम अगर कोड बहुत ज़्यादा बड़े कोड्स होते हैं, सो यू डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये कोड क्या बता रहा था और व्हाट दैट कोड एक्चुअली मेंट. सो इन दैट केस वी ऐड द कमेंट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड क्योंकि मैंने जब ये कोड लिखा था तो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. दैट वे इसलिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं. एंड द थिंग विद हैशटैग्स इज दैट द कमेंट्स दे आर नॉट विजिबल ऑन योर आउटपुट और दे डू नॉट हैम्पर विद द एंटायर कोड. So output में प्रॉब्लम नहीं देता है, which is why it's safe to use comments. Okay, so hashtag में let's say if I'm writing area is equal to 5 and if I'm writing another area equal to 2, दोनों में बहुत डिफरेंस है. Now you might be like कि they're both the same, right? Area ही है, बस एक में a capital है, एक में small a है and उनकी values different है. But when you're calculating, let's say area of a rectangle, उसमें if you're using this area, उसमें उसका value different आएगा. And if you're using this area, उसका value different आएगा. Which means variable के names जो है, they're case sensitive. So it doesn't mean कि अगर दोनों का name same है, but if the upper case एक में upper case है, एक में lower case है, तो वो दोनों मैच, उनकी वैल्यूज मैच नहीं करेगी एंड आपका आउटपुट डिफर करेगा. Okay, so integers and variables, this was pretty much the brief. एंड अभी तक के इसके बाद के जो भी कंसेप्ट्स होंगे, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, दे विल बी काइंड ऑफ बेस्ड ऑन दिस. सो आई एम होपिंग you guys are clear with this part, and we'll move on to the types. Wait a minute, Riya. I have one question for all of you. What if we just name the variable as AREA, like everything caps? Do you think that that variable will work? Or like Atharva has written in the messages, like can we use area and then O capital of circle? Can we use in that way? Is it possible? No. Yes.
Yeah. So yes, you can declare variable. It doesn't matter if it is in caps or not. Although we do have some standard practices that if you want to declare a variable of two names, let's say my name is Harsh Nagrani. So if I want to declare a variable of my name, so I'll write Harsh, everything small, and then the n of Nagrani would be in caps. So that is a good practice. So like if you want to declare a variable of two names, you will write first name in small letters and the first alphabet of the next letter will be in caps. So yeah, it doesn't matter if your variable is in caps or lowercase. So yes, yeah, you can continue. Okay, yes. So coming with types, अभी हमने वेरिएबल सीखा, हमने नंबर सीखा, right? Pretty much got the hang of how type works इधर, this code, right? Now coming to types, a short note, variables are weakly typed in Python, which means that their type is deduced from the context. Let's break this down. So variables in Python, okay, so Python में when you're adding a variable, it is smart enough to know कि okay, उस variable का अगर input integer है, so it's smart enough to recognize that okay, that number is an integer and hence it prints the class as integer, right? Same with float. Okay, also float is basically used for decimals. Integers के लिए like whole numbers जो positive है या फिर negative होते हैं तो उनके लिए हम integers use करते हैं, right? So similarly for the decimals we use float. It is one of the types of variables and that is float. So variables are weakly typed in Python. So that basically means कि अगर आपका एक variable है and if you're putting an input एक value इसका, so Python knows कि उसका जो value है तो वो define कर सकते हैं कि वो variable कौन से type के अंदर fall करता है. Whether it's an integer, it's a float, it's a complex number, it understands that, right? So इसलिए हम उसको dynamically typed भी बोलते हैं. But there are some cases, like some languages, जहाँ पे you have to predefine a variable. Suppose Python में if I'm writing a is equal to 3, right? It knows कि a will be an integer, right? अगर मैं उसको type a अगर यहाँ पे कर रही हूँ, तो it understands कि okay class उसका integer है. But अगर मैं suppose I'm doing this same in C language or Java, let's take that for an example. तो उधर if I'm adding variable a is equal to 3, तो उसका मुझे predefine करने पड़ेगा कि okay a क्या है, whether it's an integer, it's a float or what. So you see that तो इधर it's not dynamically typed, it's rather strongly typed कि हमें पहले से define करना पड़ता है उसका data type. But that's not the case in Python. So you don't have to worry about that, Utna. Okay, so let's just proceed with few examples under types. First, इधर एक example है print integer. Now, integer here is a text. It's a part of string which we will be covering in few minutes. But अभी के लिए just understand कि print अगर मैं integer कर रही हूँ तो वो output में it will show integer, right? And also just to print a text, you always have to put it in double quotes. So here you can see integer double quotes में, इसलिए हमने इसको double quotes में डाला है, इसलिए उसका output integer लिख के आ रहा है. Now suppose if I'm writing defining a variable a is equal to 3, मैंने print किया a comma type a. I'm pretty sure you guys must be aware of this by now कि क्या what this actually means. So अगर मैं print a comma type a कर रही हूँ तो पहले तो वो a की value print करेगा which is 3 and फिर उसके बाद उसका type print करेगा which here is an integer because 3 is an integer. So इधर उसने print किया 3 and class is integer. Another example, अगर मैं print कर रही हूँ float. Now okay, also what does this \n means? It basically means you're moving the output to the next line. Okay, so अगर मैं print float कर रही हूँ और मैंने इधर \n यूज किया, इसका मतलब है कि जो मेरा above जो मेरा कमांड था उसका जो आउटपुट निकलेगा उसकी नेक्स्ट लाइन पे फ्लोट प्रिंट होके आएगा. Here you can see 3 and class integer आया but उसके बाद float next line में आया. So that's basically for making it more organized.
It doesn't really matter utna, but again, to make your code look more neat. So अब मैंने print किया float, print हो क्या आया float, and then I'm using another variable b is equal to 3.14. Now 3.14 is the decimal, and that comes under the type float. Like I said before कि decimal है तो हम float उसको define करते हैं. तो b is equal to 3.14. मैंने अगर उसको सेम प्रिंट किया, प्रिंट b कॉमा टाइप b, तो पहले वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 3.14 एंड उसका टाइप विच इज अ फ्लोट, तो वो उसने प्रिंट किया. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. 11th 12th में मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा. सो यू मस्ट बी अवेयर कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देर आर टू important components. You have a real part and an imaginary part, right? So real part में, let's example, this is a complex number, right? C is equal to 3.14 plus 2j. 3.14 here is the real part and 2 is the imaginary part. Again, अगर मैं इसको print कर रही हूँ C comma type C, so it prints first the value of C and then it prints the type of C. तो इधर 3.14 2j प्रिंट हुआ एंड उसका टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो इसलिए क्लास इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर. देन नाउ ओके, अभी ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, बट व्हाट इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट जस्ट द रियल पार्ट ऑफ इट और द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इट. लेट्स से अगर मुझे सिर्फ 3.14 प्रिंट कराना है, मुझे पूरा नंबर नहीं प्रिंट कराना है, इन दैट केस आई विल यूज दिस कमांड which is print c.real. This means since 3.14 is the real part of the complex number, the c.real will extract 3.14 and it will print it यहाँ पे 3.14. and उसका टाइप क्या रहेगा? टाइप इट विल चेक कि 3.14 का टाइप क्या है. इट्स अ फ्लोट, राइट? तो यहाँ पे फ्लोट प्रिंट हो गया है. अगेन अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट करना है तो मैं c.imaginary करूँगी, c.image जो 2 प्रिंट करेगा एंड यहाँ पे 2.0 प्रिंट हुआ है. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे 2.0 क्यों प्रिंट हुआ है एंड 2 क्यों नहीं प्रिंट हुआ है, इज बिकॉज पाइथन में व्हेन यू आर राइटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट स्टोर्स बोथ इमेजिनरी एंड द रियल पार्ट, दोनों को फ्लोट में स्टोर करता है. सो एज इवन इफ यू आर राइटिंग दिस लाइक फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 लिख रही हूँ मैं इसको 3.14 नहीं लिख रही हूँ, तो भी वो 3.0 ही प्रिंट करेगा एंड इट विल कम अंडर फ्लोट एंड नॉट इंटीजर. उसको अगर मेरे को फ्लोट से अगर इंटीजर कन्वर्ट करना है तो दैट वी विल लर्न कि वो कैसे करते हैं. बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट करा रही हूँ उसका रियल और इमेजिनरी, एंड इवन इफ वो इधर मुझे इंटीजर दिख रहा है, बट जब मैं उसको प्रिंट करूँगी तो इट विल कम अंडर फ्लोट, इसलिए वो डेसिमल में प्रिंट होगा एंड हेंस 2.0 एंड इट कम्स अंडर फ्लोट. सो ओके, इतना कवर हुआ है. आई एम गेसिंग अभी तक कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. फॉर दोज पीपल जो लोग ऑलरेडी पाइथन से फेमिलियर हैं, आई एम प्रीटी श्योर उनके लिए काफ़ी ईजी रहा होगा. जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम, डोंट वरी, बट प्रैक्टिस लगेगा. सो टाइम के साथ विल मेक यू गाइस अंडरस्टैंड. अभी शॉर्ट नोट, this typing can lead to some variable having unwanted types which can be resolved by casting. Breaking this down, unwanted types क्या होते हैं? So sometimes क्या होता है, this was a very simple example जहाँ पे आपने अपना input डाला and you get the desired output, right? Sometimes अभी let's say for example I have a is equal to 10 and I have b is equal to 3.14. Let's just write this here. अगर suppose मुझे मिल रहा है a is equal to 10 and I'm writing b is equal to 3.14. Can anybody tell me कि मुझे अगर a plus b करूँगी तो मुझे वो कौन सा टाइप मिलेगा? इंटीजर मिलेगा कि फ्लोट मिलेगा? Y'all can unmute yourselves. Float. Float. Yes. Float, right? क्यों? Float. क्योंकि b was a float. Yes, okay. So that why that? Because मैं integer plus float कर रही हूँ, तो मुझे float ही result आएगा, right? Basic mathematics. अगर मैं 10 plus 3.14 कर रही हूँ, तो मुझे answer 13.14 आएगा, which is a float, right?
बट अभी दैट्स द केस कि अगर मुझे 13.14 मुझे मिल रहा है, बट लेट्स से आई वांट द आउटपुट एज एन इंटीजर, मुझे फ्लोट नहीं चाहिए। मैंने भले a इज इक्वल टू 10 लिखा है, b इज इक्वल टू 3.14 लिखा है, एंड मैंने पाइथन से पूछा तो उसने मुझे बता दिया कि ओके 13.14 आ रहा है एंड विच इज़ अ फ्लोट। बट व्हाट इफ आई वांट एन इंटीजर, मुझे सिर्फ 13 चाहिए, मुझे फ्लोट चाहिए ही नहीं। दैट इज व्हेन यू यूज कास्टिंग। कास्टिंग बेसिकली इज अ टाइप कन्वर्जन। मतलब अगर मैं फ्लोट, अगर कोई वेरिएबल को डाल रही हूँ तो वो मुझे, मैं उसको इंटीजर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत बेसिक सा। d is equal to j into j. Now again complex numbers आ रहा है, so घबराना नहीं, it's like very simple, explanation के साथ आएगा। बट अगर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ d एंड मैंने उसको किया j into j, बेसिकली j स्क्वायर बन रहा है। एंड इफ यू हैव स्टडीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो पता होगा j स्क्वायर इज -1, राइट। j स्क्वायर का हम -1 लिखते हैं, बट उसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, -1 + 0j, यहाँ से, राइट। तो -1 इज द रियल पार्ट, 0 इज द इमेजनरी पार्ट। अब मैंने अगर इसको प्रिंट किया, इसका आउटपुट, राइट, तो मुझे मिलेगा -1 + 0j, प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट, एंड इसका टाइप क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स, राइट। नाउ अगर लेट्स से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द रियल पार्ट विच इज -1, तो मैंने d इज इक्वल टू d डॉट रियल लिखा, एंड मैंने जब प्रिंट करना होगा मुझे तो d कॉमा टाइप t लिखूंगी, जिससे मुझे -1.0 आएगा एंड क्लास विल बी फ्लोट, राइट। -1.0 अगेन why not -1 and -1.0 क्यों आ रहा है, इज बिकॉज पाइथन वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दोनों को फ्लोट में स्टोर कर रहा है, राइट। अब मुझे लाइक द सेम केस आई टोल्ड यू गाइस कि यहाँ पे -1.0 है एंड मुझे पता है ये फ्लोट मारा है, बट व्हाट इफ आई वांट इट एज एन इंटीजर एंड नॉट अ फ्लोट, मुझे सिर्फ -1 चाहिए था, मुझे फ्लोट नहीं चाहिए। तो मैं उसको एक सिंपल सा कमांड दूंगी, d इज इक्वल टू इंट d। इसका मतलब है आई एम डूइंग कास्टिंग इधर। व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैंने d जो इनिशियली फ्लोट था, मैंने उसको अब इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल सा कमांड है, इंट d करोगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं -1.0 लिख रही हूँ तो मुझे इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट मिलेगा एंड दैट इज -1, ओके। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मुझे सिर्फ -1 मिलेगा एंड द क्लास विल बी इंटीजर। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैंने एक और वेरिएबल लिया e इज इक्वल टू 10/3, मैंने प्रिंट किया e कॉमा टाइप e, 10/3 है, राइट। सो एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली इसका आंसर फ्लोट में आएगा, राइट। तो अगर मैं 10/3 करूँ तो मुझे जब मैं प्रिंट करूँगी तो 3.33 सो ऑन आएगा एंड इसका क्लास विल बी फ्लोट। बट अगर ओके लेट्स से अनदर एग्जांपल कि f इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3। अभी जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे 1 मिलना चाहिए, राइट। तो 1 मिल गया, प्रिंट मैंने किया उसको एंड यहाँ से मुझे 1.0, ऑब्वियसली क्योंकि रैशनल नंबर्स यूज कर रहे हैं हम तो फ्लोट में आंसर आएगा। तो 1.0 किया एंड द क्लास इज फ्लोट। बट अभी अगेन मुझे सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो अगर 1.0 है तो आई ओनली वांट 1, तो तब मैं क्या करूँगी, मैं उस पर इंट ऐड करूँगी। आई डू कास्टिंग अगेन विच मीन्स टाइप कन्वर्जन, तो वो फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करेगा एंड जैसे वो इंट में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ का 0.0 हट जाएगा एंड सिर्फ 1 प्रिंट होगा एंड द क्लास विल बी इंटीजर। आई होप दैट्स क्लियर। थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे थोड़े और एग्जाम्पल्स के थ्रू जाओगे तो you'll get a hang of it कि कैसे करना है करके। कोई कुछ And डाउट हो तो you guys can unmute yourself and ask, okay? yeah, you all can unmute yourselves अच्छे से, और चैट बॉट पे भी डाल सकते हो, चैट बॉक्स पे। तो ओके, आई एम गेसिंग सबको अभी तक आ गया है। एंड ऑल्सो आर यू गाइज कोडिंग पैरेलली? कैन यू गाइज लाइक गिव मी अ हेड्स अप कि तुम लोग साथ में कोड कर रहे हो? ओके, Yes. ग्रेट, ओके। Okay, Let's will we get just recording for this session? yes you will, yes you will. Okay, thank you. ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन से। मैथ्स में अगेन
ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, राइट, एडिशन, बहुत सिंपल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं. इधर इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि उसका सिंटैक्स कैसे दिखता है. उससे भी ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, राइट, एक्सपोनेंट्स भी होते हैं, देन मॉडुलो, विल कम बैक टू दिस लेटर, बट एक्सपोनेंट्स एंड ऑल कैसे लिखा जाता है दैट विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. तो अभी लेट्स से एक है प्रिंट, मुझे 7 into 3 करना है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन. तो मुझे उसका टाइप जानना है कि जब मैं 7 into 3 करूँगी तो उसका आउटपुट कौन सा टाइप आएगा उसका. तो विच इज़, ओह नहीं सॉरी, सो 7 into 3.0 कर रही हूँ मैं. आई एम नॉट डूइंग 7 into 3 डायरेक्ट. इधर यू ऑल कैन सी 3.0 है वो. तो ऑब्वियसली अगर मैं 7 into 3.0 कर रही हूँ तो मुझे उसका आंसर फ्लोट में ही मिलने वाला है, राइट. हियर इज द बेसिक कंसेप्ट कि अगर मैं इंटीजर को इंटू फ्लोट कर रही हूँ तो मुझे फ्लोट मिलेगा, इंटीजर प्लस फ्लोट करूँगी तो मुझे फ्लोट मिलेगा. सिमिलरली अगर मैंने 7 into 3.0 किया तो आई विल गेट 21.0 एंड उसका टाइप मुझे फ्लोट मिलेगा. नाउ जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, अगर मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट मेथड विल आई यूज़? Yes, Okay. yes. You guys are correct. You guys are correct. टाइप का Yup. Yes. Yes, you will. तो मैं बेसिकली इसमें अभी कास्टिंग करूँगी, मतलब कि मैं टाइप को सॉरी मैं इसमें जो फ्लोट है उसको मैं अब कन्वर्ट करूँगी इंटीजर में, राइट. तो दैट यू ऑल कैन डू अभी, क्योंकि अब ऊपर के एग्जाम्पल से आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो यू ऑल जस्ट हैव टू राइट द इंटीजर एंड उसके बाद तुम्हें इजीली इंटीजर में मिल जाएगा वैल्यू, एंड इसलिए वो सिर्फ 21 प्रिंट होगा. नाउ कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल, प्रिंट 3 divided by 2 एंड टाइप उसका पूछा है मैंने कि 3 divided by 2 करके मुझे क्या टाइप मिलेगा. तो मुझे ऑब्वियसली 1.5 मिलेगा एंड दैट्स अ फ्लोट. नाउ you can see warning, integer in Python 2 and float in Python 3. The current version of Python we're using is Python 3. So Python 3 में जो भी तुम रैशनल नंबर यूज़ करते हो तो उसका हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट वो टाइप फ्लोट ही निकालेगा, राइट. बट दैट्स नॉट द केस इन Python 2. Python 2 में तुम्हें अगर तुम प्रिंट कर रहे हो 3 divided by 2, तो 3 divided by 2 में वो इंटीजर आउटपुट देगा एंड नॉट अ फ्लोट, अनलेस यू मेंशन और यू स्पेसिफाई कि 3 divided by 2.0 है. अगर मैं Python 2 में 3 divided by 2.0 कर रही हूँ तो ही मुझे उसका आउटपुट फ्लोट में मिलेगा एंड दैट विल बी 1.5. बट अगर मैं like Python 2 में 3 divided by 2 कर रही हूँ तो it will only give me 1 and that will be an integer. But that's not something to worry about in Python 3 because by default you get 1.5 as float. Now अभी exponents को कैसे हम show करते हैं. तो ऑब्वियसली अभी बहुत आगे बढ़ के तुम्हें एक्सपोनेंट्स के साथ भी काम आने वाला है. तो उस टाइम व्हाट यू डू इज प्रिंट करोगे 2 डबल एस्ट्रिक. डबल एस्ट्रिक इज टू शो कि इसका एक पावर है. तो इधर यू कैन सी 2 raised to power 10 एंड उसका टाइप will be an integer because 1024 which is 2 raised to 10, that's an integer. Okay, and last example, now इधर modulo with percentage. What does this mean? अभी प्रिंट में अगर मैं सपोज कर रही हूँ 8% 2. मैम एक्सपोनेंट फिर से रिपीट करेंगे. Okay, so exponents में basically how that's like a very simple syntax actually कि अगर मुझे दिखाना है 2 raised to 2 और 2 raised to 5, 2 raised to 10, तो raised to जो आ रहा है, पावर जो आ रहा है, उसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो that you represent by using double asterisk. Okay, 2 asterisks यूज करोगे तो that basically means कि उसका पावर दिखा रहा है वो. तो this means 2 double asterisk 10 which means 2 raised to 10. I hope that clears it out. यस. Okay, so 2 raised to 10 1024 and उसका class हमें integer मिला, right? Now yeah, I was explaining modulo with percent. तो modulo with percent में when you're printing 8% 2, it's not division but it's rather the remainder that is getting as an output. मतलब if you're doing 8% 2,
तो मुझे जो उसका रिमाइंडर मिलेगा वो मैं प्रिंट कराऊंगी इधर। 8% 2 मतलब अगर मैं 8 डिवाइडेड बाय 2 कर रही हूँ तो मुझे इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, राइट? तो 0 इधर प्रिंट होगा एंड उसका क्लास ऑब्वियसली 0 का क्लास इज इंटीजर, तो वो प्रिंट होगा। ओके, सपोज मैं 3% 2 लिख रही हूँ, 3% 2 पे उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1, तो इसलिए 1 एंड देन क्लास विल बी इन इंटीजर। ओके, अभी तक कितना क्लियर हुआ है लेट मी नो, और डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो if I can help with it. ठीक है, I don't hear anyone asking me doubts. So I'll just go with the booleans अभी because we'll have to cover a lot of topics today. तो थोड़ा fast करते हैं अभी. Okay, booleans. Boolean is the type of variable, true or false, and thus are extremely useful when coding. Boolean अभी 12th में आई थिंक जिन लोगों ने साइंस लिया तो उनको एक चैप्टर होगा लॉजिकल गेट्स, राइट? लॉजिक गेट्स में व्हाट यू हैव एंड गेट्स, और गेट्स, नॉट गेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स, एंड उसमें यू यूजुअली प्ले अराउंड विथ बाइनरी इनपुट्स 0 और 1, राइट? काइंड ऑफ रिलेटेड टू दैट कि बूलियन भी इधर ट्रू और फॉल्स है एंड यू कैन यूज दोज लॉजिक ऑपरेशंस ऑन दिस, बट मेनली इट्स यूज फॉर कंपेरिजन्स। आपको अगर कंपेरिजन करना है, सपोज मैं कंप्यूटर को बोल रही हूँ कि आई हैव 2 वेरिएबल्स a एंड b, एंड मैंने कंप्यूटर को बोला कि लेट मी नो इफ a इज ग्रेटर देन b और नॉट, राइट? एंड मैंने उसको वैल्यूज दे दी कि a इज 5 एंड b इज 2। तो अभी कंप्यूटर इट विल प्रोसेस इट एंड इट विल लेट मी नो कि वेदर a इज एक्चुअली ग्रेटर देन b और नॉट। तो अगर वो आउटपुट वो मुझे देगा फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में, एंड दैट इज वेयर बूलियन स्टार्ट्स टू प्ले इन, एंड इट्स ऑल्सो यूज फॉर द लॉजिकल ऑपरेशंस। वील सी इट नेक्स्ट एग्जाम्पल में, बट अभी के लिए जस्ट इतना रिमेंबर करो कि बूलियन इज यूज फॉर द कंपैरिजन्स, राइट? नाउ ओके, couple of print statements here. We'll start with the first. Print 2 greater than 1 \t. Now 2 greater than 1 हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि 2 is greater than 1, हमने इसको एक स्टेटमेंट दे के रखा है. Now \t क्या है? \t is basically tab space. It gives you space between two of your numbers or words. दो words के बीच में अगर मुझे space देना है या फिर दो outputs के बीच में मेरे को space देना है तो मैं use करती हूँ \t. Right? It's for tabular space. But what was for the \n? What were like we discussed it एकदम starting में कि \n किस लिए use होता है? नेक्स्ट लाइन के लिए, न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए, Yeah. न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन के लिए, राइट? अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में लेना है इसलिए मैं \n यूज करती हूँ, बट अभी के लिए इफ आई वांट इट हॉरिजॉन्टल में अगर मुझे स्पेस चाहिए तो आई यूज \t. तो अभी अगेन मैंने एक स्टेटमेंट डाला कि 2 इज ग्रेटर देन 1, फाइंड आउट वेदर 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1 और नॉट. अगर 2 ग्रेटर देन 1 होगा तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा. तो यू कैन सी 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे मैंने उसको डाला कंडीशन एंड इट पहले प्रोसेसेस इट एंड देन इट टेल्स मी कि वो ट्रू है, राइट? सेकेंड में अगेन 2 ग्रेटर देन 2, इज दैट करेक्ट? इट्स नॉट करेक्ट. दो सेम इक्वल है, राइट? सो 2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 एंड हेंस फॉल्स. इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. बट अभी लेट्स से 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच मीन्स कि या तो 2 ग्रेटर देन 2 है या फिर इट इज़ इक्वल टू 2. So obviously it checks for the equality and वो देखता है कि 2 is actually equal to 2 and it prints true. Same for 2 equal to 2. Now why यहाँ पे 2 equal to क्यों यूज़ किया है और हमने single equal to क्यों नहीं यूज़ किया है? Any guesses? Why हम इसको डायरेक्ट 2 equal to 2 भी लिख सकते थे, right? पर हमने double equal to साइन दिया इधर. For comparing. single equal to is used for assignment. Yeah, so very correct. 2 equal to 2, that's basically for comparisons. अगर मैं 2 equal to 2 दे रही हूँ तो एक syntax error throw करेगा. Why? Because equal to sign हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है, ऊपर यहाँ पे let's say
e is equal to 10 divided by 3. यहाँ पे मैं equal to sign क्यों use कर रही थी, single equal to sign क्यों use कर रही थी, because I wanted to assign a value to the variable, right? But for comparisons, when you want to compare two values or two variables, you use double equality sign, and that is why 2 equal to 2. Only then it will recognize कि okay मैं दो numbers को equal बताना चाह रही हूँ. And that is when you write this, you print this, तो मुझे true मिलता है because 2 is equal to 2. Similarly, अगर 2 equal to 2.0 है, obviously 2.0 and 2 is the same, तो वो मुझे true दिखाएगा. And what is this? What does this mean? Any guesses? ये क्या define कर रहा है? Not equals. Not. Yeah. So two exclamatory mark. Yeah, okay. So 2 exclamatory mark and equal to. This means not equal to. And इसलिए since 2 is not equal to 1.9, तो वो it's not equal to 1.8, तो इसलिए वो true दिखा रहा है. Okay. Now coming to true and false. Like अगर suppose this was the comparison part. अभी हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे इसमें ऐड करना है. तो अगर आपने वही लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, सो यू मस्ट बी अवेयर कि उधर उसकी एक टेबल होती है, राइट? हर एक गेट की टेबल होती है. यू हैव एंड की टेबल, यू हैव और टेबल एंड सो ऑन. So true and false, when you're printing true and false, basically consider as 0 and 1. So if I'm using an AND operation for 0 and 1, I get 0, which means false. इसलिए मैंने इधर false दिखाया है. Similarly, अगर आप और operation use कर रहे हो for 1 plus like 1 and 1 के लिए मैं और operation use कर रही हूँ, तो it will come out as 1. इसलिए true और true के लिए true आ रहा है. And not false means अगर मैं not operation use कर रही हूँ on false, तो उसका negation मिलेगा मुझे, which will be true. I hope that's clear. We'll swiftly move on to the lists. And lists पे, okay, this is an important part because ये आपको बाद में भी काम आने वाला है. So lists are base element for sequences of variables in Python. They are themselves a variable type. Lists क्या होते हैं? They are basically you make a to-do list, right? आप घर पे बहुत बार to-do list बनाते हो to write a sequence of the tasks that you will be doing in a day. Similarly to that, हम list create करते हैं. And to-do task में कैसे होता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ task add करते हो vertically, इधर हम horizontally list create करते हैं. अभी कुछ pointers हैं जो list से related आपको याद रखने हैं. उसका syntax is a square bracket and the elements inside it. तो list का हमेशा syntax ऐसा होता है, square bracket use करते हैं हम, and उसके अंदर सारे elements होते हैं. The types of the elements may not be all the same. अगर लिस्ट के अंदर आप जैसे टू डू लिस्ट बनाते हो, तो इट डजंट हैव टू बी लाइक ना कि सिर्फ होमवर्क का टू डू लिस्ट है या फिर मूवीज का टू डू लिस्ट है. इट कैन बी अ कंपाउंड लिस्ट कि आज मैं सोई, आज मैंने खाना खाया, आज मैंने मूवी देखा. All of these tasks, they are not related to each other, but they are still the elements of that to-do list. And that's what the list in Python does. Python में जो list आप create कर रहे हो, तो it doesn't have to be कि अगर integer है तो सारे elements integer ही होने चाहिए. अगर एक integer है तो दूसरा float element भी हो सकता है, तीसरा boolean भी हो सकता है. It can be anything. It can be a mixture of all the data types that we've learned today, right? So types of the elements may not be all the same. अभी हम okay, now the indices begin at 0. This is something that's important, so make a note of this कि Python में when you're making a list and you have a couple of elements in there, so element हमेशा उसका एक एक position होता है. You refer to a position just to understand कि ये element कौन से position में है. We assign a certain index to each element, and वो index हमेशा 0 से start होता है, and it goes on to the length of the list जो भी है, but हमेशा वो 0 से start होगा, right? When you're going from left to right, if you're going from right to left, it starts with -1. We'll understand this in a bit. But अभी के लिए कि indices always begin at 0 when you're going from left to right.
नाउ लिस्ट कैन ऑल्सो बी नेस्टेड. तो अगर आप एक लिस्ट है तो इट कैन ऑल्सो बी कि एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट हो, विच यू गेट एन एग्जाम्पल कि सपोज मैंने एक एल वेरिएबल क्रिएट किया एंड एल इक्वल टू 1, 2, 3, कॉमा अ नेस्टेड लिस्ट. दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, and comma true comma 2.3. Remember how I told you कि types of the elements may not be all the same. This is exactly what's happening here. List में ज़रूरी नहीं सारे elements same data type के हों, it can be of different data types. इसलिए यहाँ पे आपको integer भी दिखेगा, nested list भी दिखेगा, boolean भी दिखेगा and float भी दिखेगा. It can be a mixture of all these. मैंने इसको प्रिंट किया L टाइप L किया तो मुझे पहले तो पूरा लिस्ट प्रिंट होके आया एंड मुझे इसका फिर क्लास पता चला मुझे. नाउ प्रिंट अगर मैं कर रही हूँ L0 एंड इसका टाइप L0. नो व्हाट दिस मीन्स कि यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिख रही हूँ वैल्यू, दैट बेसिकली रिफर्स टू द इंडेक्स और द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट दैट इज इन द लिस्ट. इधर L इक्वल टू ये पूरा एलिमेंट्स है राइट, बट अगर मैं इंडेक्स 0 दे रही हूँ इसका मतलब मुझे कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है, पहला, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इंडेक्स बिगिंस एट 0. तो अगर मैं L0 डाल रही हूँ तो मुझे 1 मिलेगा. सिमिलरली अगर L3 डाल रही हूँ तो 0, 1, 2, 3, 4,8 मिलेगा एंड वो 4,8 पूरा मिलेगा बिकॉज इट्स अ लिस्ट इन इटसेल्फ. सो ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1, मुझे इसका क्लास पता चल रहा है. 4,8 का क्लास इज लिस्ट, इट्स नॉट एन इंटीजर, इट्स अ लिस्ट बिकॉज वो एक नेस्टेड लिस्ट है. एंड लास्टली अगर मैं L3 एंड 1 कर रही हूँ, दिस मीन्स कि मैं पहले तो रिफर कर रही हूँ लिस्ट का पोजीशन ऑफ इंडेक्स एट 3 विच इज 0, 1, 2, 3, 4,8 एंड 4,8 में इधर यू कैन सी मैंने 1 लिखा है, मतलब इंडेक्स इक्वल टू 1. तो 4,8 पे कौन सा इंडेक्स है, 1 पे 8. That is the element at index 1 in the nested list 4,8. So इसलिए 8 प्रिंट हो रहा है and the class of 8 is integer. अभी यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशंस हैं, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है, प्रिंट स्टेटमेंट्स. प्रिंट पहले तो L किया मैंने तो मुझे पूरा लिस्ट प्रिंट हुआ. देन मैंने L4 कोलन स्पेस डाला है. नाउ व्हाट दिस मीन्स इज कि मैं अगर रिफर कर रही हूँ ओरिजिनल लिस्ट पे तो इस पे पहले मैं काउंट करूँगी कि इंडेक्स 4 पे कौन सा है. तो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 राइट. तो 4 के बाद के 4 एंड 4 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल गेट प्रिंटेड अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो मुझे ट्रू भी मिलेगा एंड 2.3 भी मिलेगा. सिमिलरली अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ 1 स्पेस कोलन 5 तो इस पे मुझे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे बिफोर 5 बट एक्सक्लूडिंग 5. तो इधर यू कैन सी मुझे सारे एलिमेंट्स मिल गए बिफोर 5 बट इंडेक्स यहाँ पे 5 इंडेक्स इज 2.3 बाय द वे. तो इसलिए मुझे सारे एलिमेंट्स मिल गए बिफोर 2.3 बट मुझे 2.3 नहीं मिला है बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग दैट व्हेन यू राइटिंग दिस स्टेटमेंट. देन 4 कोलन 5 अगर मैं डाल रही हूँ तो ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन 4 एंड 5 एक्सक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग इंडेक्स 4. तो मुझे सिर्फ ट्रू मिलेगा बिकॉज मैंने 4th इंडेक्स को इंक्लूड किया एंड 5th इंडेक्स को नहीं इंक्लूड किया. दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स. देन अगेन 1, 6 एंड 2. दिस बेसिकली मीन्स कि मैं 1 से लेके 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स देख रही हूँ राइट. 1 से लेके 6 के बीच में सारे एलिमेंट्स देख रही हूँ बट एट द स्टेप ऑफ 2, मतलब मैं इंटरवल 2 के इंटरवल्स पे देख रही हूँ. तो विच मीन्स कि अगर मैं 1 पे स्टार्ट कर रही हूँ इंडेक्स तो 1 देन 3 एंड देन 5. तो 1, 3, 5 पे कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स है, 2, द नेस्टेड लिस्ट एंड 2.3 एंड दैट्स हाउ इट इज. नाउ रिवर्स्ड ऑर्डर, अगर मुझे लिस्ट को रिवर्स करना है तो मैं कैसे करूँगी, -1 करके. रिमेंबर हाउ आई टोल्ड यू, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप 0 करोगे बट राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आप पहला एलिमेंट आपका जो राइट मोस्ट होगा दैट विल बी -1. इसलिए -1 अगर आप डाल रहे हो तो आपका पूरा रिवर्स ऑर्डर आ रहा है एंड इसलिए हेंस दिस आउटपुट. देन -1 अगर मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट एलिमेंट के लिए तो ऑब्वियसली मुझे 2.3 मिलेगा राइट. यहाँ पे 2.3 आपको आउटपुट मिलेगा. यू कैन ऑल्सो ऐड 5, लाइक अगर मैं प्रिंट L5 करूँगी, लेट्स सी
अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ L5 तो मुझे दिस इज सिंटैक्स एरर, बट अगर मैं प्रिंट L5 कर रही हूँ तो मुझे अगेन 2.3 ही मिलने वाला है, मुझे कोई दूसरा डिजिट नहीं मिलेगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊँगी तो 2.3 का इंडेक्स 5 होगा, राइट टू लेफ्ट जाऊँगी तो उसका -1 होगा, वेदर आई एम राइटिंग 5 और -1 दोनों में सेम आउटपुट आने वाला है. ओके, नाउ ऑपरेशंस ऑन लिस्ट्स. इधर सर्टेन ऑपरेशंस है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट मूव करेंगे. सपोज अगर लिस्ट में मुझे एंड में कोई एलिमेंट चाहिए तो आई विल डू l डॉट अपेंड. अपेंड इज द like word you use to add a digit at the end of your list. तो अगर मुझे लिस्ट में 10 ऐड करना है तो एंड में वो भी, तो l डॉट अपेंड 10 करूँगी तो मुझे यहाँ पे पूरी लिस्ट में एंड में 10 मिलेगा. देन अगर l डॉट इंसर्ट करना है, नाउ यू कांट इंसर्ट एन एलिमेंट डायरेक्टली, यू हैव टू स्पेसिफाई कि कौन सी पोजीशन में आपको इंसर्ट करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई इट्स इंडेक्स, एंड इसीलिए l डॉट इंसर्ट 1, u. मतलब मैं लिस्ट जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें मैं u ऐड तो कर रही हूँ, बट वो कौन से इंडेक्स पे ऐड कर रही हूँ दैट इज डिफाइंड बाय दिस. इंडेक्स 1 पे मैं ऐड कर रही हूँ u को, एंड इसीलिए ये लिस्ट पूरा हो रहा है, एंड यहाँ पे u is added at index 1. रिमूव करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 था, मैंने उसको रिमूव कर दिया तो वो 10 लिस्ट से हट गया. सिमिलरली अभी लेंथ ऑफ द लिस्ट, इफ आई वांट टू चेक कि मेरे पास सपोज 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट है, मैं हर एक लिस्ट 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट है, तो मैं हर एक एलिमेंट नहीं चेक करूँगी कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट. तो फॉर दैट आई यूज लेंथ L. That means it calculates कि लिस्ट की लेंथ कितनी है, एंड इधर 7 है बिकॉज ओरिजिनल लिस्ट में हमारी 7 एलिमेंट्स थे. देन टू टेस्ट कि एक सर्टेन एलिमेंट एक लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फॉर दैट यू डू प्रिंट 2 in L. सो दिस इज कि अगर मुझे 2 चेक करने की 2 लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सो आई यूज द स्टेटमेंट, एंड सिंस 2 एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, यू कैन सी 2 है लिस्ट में, इसलिए इट प्रिंट्स ट्रू. Now handling list. अभी list are obviously pointer like types. मतलब कि if you're I'll just explain this with an example. Suppose मैं L2 equal to L लिख रही हूँ. L2 equal to L अगर it basically means कि I'm creating a copy of L as L2, and वो जो L है जो original file उसका exact copy है जिसको मैं L2 बोल रही हूँ. Now thing with this is कि अगर मैं लिस्ट में अगर कुछ चेंजेस कर रही हूँ तो वही सेम चेंजेस मुझे L2 में भी दिखने वाले हैं अगर मैं ये टाइप कर रही हूँ तो अगर मैं अगर ओरिजिनल लिस्ट है और इसमें मैं अपेंड कर रही हूँ समथिंग, अपेंड वाज एडिंग समथिंग एट लास्ट, राइट. तो ये मेरा ओरिजिनल लिस्ट है, इधर मैंने समथिंग एंड में ऐड किया है, तो इफ आई एम एडिंग दिस तो वो मुझे L2 में भी दिखाई देने वाला है. तो वंस आई एम प्रिंटिंग L, L2, तो L2 में भी यू कैन सी यहाँ पे एंड में समथिंग ऐड हो रहा है. बट व्हाट इफ कुछ केस होता है जहाँ पे इफ आई एम मॉडिफाइंग द ओरिजिनल लिस्ट बट आई डोंट वांट टू मॉडिफाई द कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल लिस्ट. लाइक अगर मैंने L क्रिएट कर दिया एंड मैंने L2 ऑल्सो उसका कॉपी बना दिया, बट आई डोंट वांट कि मैं जो भी मॉडिफिकेशंस L में कर रही हूँ वो L2 में भी रिफ्लेक्ट हो. फॉर दैट यू यूज लिस्ट और L डॉट कॉपी. तो इसमें क्या होगा, सपोज मैंने L3 एक क्लोन बनाया बेसिकली ओरिजिनल लिस्ट का, एंड मैंने वो क्लोन इक्वल टू लिस्ट L लिखा है. दैट वुड मीन कि अगर मैं L डॉट रिमूव, मतलब अगर मैं ओरिजिनल लिस्ट से मैं अगर समथिंग रिमूव कर देती हूँ एंड मैं दोनों को प्रिंट करती हूँ, L एंड L3 को प्रिंट करती हूँ, तो मुझे इसमें तो समथिंग नहीं दिखेगा बिकॉज मैंने रिमूव कर दिया है L से, लेकिन L3 से आई हैवंट रिमूव्ड, राइट. तो इट वॉन्ट गेट मॉडिफाइड, एंड इसीलिए L3 में समथिंग दिखाएगा. ओके. अभी एक सिंपल सा है कि आप लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हो एंड वॉइड लिस्ट कैसे यूज करते हो. सो इफ आई एम असाइनिंग L4 एज अ वॉइड लिस्ट एंड L5 एक कोई भी मैंने लिस्ट बना दिया जिसमें रैंडम इंटीजर्स एंड फ्लोट्स हैं, एंड इफ आई एम प्रिंटिंग L plus L4 plus L5, L is the original list, L4 is the empty list or the void list, and L5 is the new list. जब इन तीनों को मैं ऐड करूँगी तो इन तीनों के जितनी भी एलिमेंट्स है वो सब एक
बड़े से लिस्ट में ऐड हो जाएंगे. सो यू कैन सी यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट के भी एलिमेंट्स है. L4 के ऑब्वियसली कोई एलिमेंट्स नहीं है बिकॉज इट्स एन एम्प्टी लिस्ट, एंड L5 के भी एलिमेंट्स है. दैट्स हाउ इट इज. एंड प्रिंट अगर मैं L5 इंटू 3 कर रही हूँ तो L5 इंटू 3 मतलब L5 के जितने भी एलिमेंट्स है ये 3 बार प्रिंट हो गए सेम ही लिस्ट में. तो अगर मैं सेम लिस्ट लिख रही हूँ तो इसमें यू कैन सी 4, 8, 10.98 ये 3 बार रिपीट हो रहा है बिकॉज मैंने L5 इंटू 3 करके रखा है. ओके अभी टपल्स एंड डिक्शनरीज पे आते हैं. दिस इज वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, तो वो थोड़ा कवर करते हैं. टपल्स एंड लिस्ट आर काइंड ऑफ सिमिलर बट उनका सिंटैक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट. टपल्स जो है दे आर सिमिलर टू लिस्ट बट उनका मेन पहले तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि लिस्ट है कि टपल है विद द हेल्प ऑफ द सिंटैक्स दैट इज बीइंग यूज्ड. तो अगर टपल में मैं पैरेंथेसिस यूज कर रही हूँ तो मतलब वो जो भी है वो टपल है, बट अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रही हूँ तो मतलब वो एक लिस्ट है, राइट. एंड वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इसकी टपल में यू कैन सी कि हमने यहाँ पे अपेंड किया था, हमने इंसर्ट किया था, रिमूव किया था, राइट. लिस्ट में हम एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. दिस अपेंड एंड रिमूव एंड इंसर्ट ये सब हम टपल्स में नहीं कर सकते, विच मीन्स कि लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल. दे कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड. ओके सो यहाँ पे t एक मैंने वेरिएबल लिया एंड उसका टपल में पैरेंथेसिस लिया मैंने 1, b ये उसके एलिमेंट्स है. इट वर्क्स सिमिलर टू टू लिस्ट बट अगेन थोड़े डिफरेंसेस है स्पेशली इन द सिंटैक्स एंड कि ये इम्यूटेबल होता है एंड लिस्ट इज म्यूटेबल. सो t इज इक्वल टू ये मैंने एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं. अभी प्रिंट t टाइप t में कर रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली t प्रिंट होगा एंड उसका क्लास प्रिंट होगा विच इज अ टपल. एंड अगर t का मुझे इंडेक्स देखना है तो t का इंडेक्स सपोज 0 है तो मैं इस टपल को रेफर करूंगी एंड उस टपल का इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा एंड दैट इज 1. a, b 12 अगर सपोज मैंने दो वेरिएबल्स यूज किए, a इज 12, b इज दिस लिस्ट एंड मैंने u करके एक वेरिएबल बनाया जो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b. तो अगर मैं u a, b लिख रही हूँ एंड मैं उसको प्रिंट कर रही हूँ a, b, u तो मुझे पहले तो a प्रिंट होगा 12, b प्रिंट होगा विच इज अ लिस्ट एंड u विल प्रिंट एज अ टपल. मतलब u में a, b है तो a के भी एलिमेंट्स ऐड होंगे एंड b के भी एंड हेंस 12, b के एलिमेंट्स. नाउ ट्राई एंड 1 second. Okay, so by that time, I hope तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि what is happening. ठीक है, कुछ डाउट्स हो तो you guys can ask. तुम लोग पूछ सकते हो, है ना. मैं और वेदांत कॉन्स्टेंटली मीट में है ही. Yep, I'm back. Sorry about that. Okay, so अभी Priya. यहाँ पे Can you just repeat this tuple वाला thing? किसी को डाउट था एक बार बस वापस बता देना. okay. So tuples में what it's being used basically तो tuple and list का difference समझो. Tuple का syntax is when you use a parenthesis and list का syntax is when you use a square bracket. राइट. इतना बेसिक है क्योंकि अगर आप टपल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओके इसका क्या टाइप है एंड अगर आप लिस्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस इज अ लिस्ट बिकॉज उसमें स्क्वायर ब्रैकेट है. अदर देन दैट कंसेप्चुअली लिस्ट में आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो एलिमेंट, आप उसमें अपेंड कर सकते हो, आप उसमें से रिमूव कर सकते हो एलिमेंट्स. टपल्स में यू कैन नॉट डू दैट. टपल्स में आप इंसर्ट रिमूव ये सब नहीं कर सकते. सो फॉर दैट टपल्स आर कॉल्ड इम्यूटेबल एंड लिस्ट्स आर कॉल्ड म्यूटेबल. ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा दे कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड. नाउ आई एम होपिंग कि ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि व्हाट दिस एक्चुअली मेंट. दिस ऑल्सो एक बार कवर अप कि अगर a, b है एंड इन दोनों के मैंने अगर असाइन किया है कि इनके एलिमेंट्स क्या है एंड u इज इक्वल टू a, b, मैंने एक और वेरिएबल लिया विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b.
और अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ a, b, u, तो मुझे इन तीनों के एलिमेंट्स मिलेंगे एज एन आउटपुट, विच मीन्स a का वैल्यू विच इज 12, b which is this list, and u which is a tuple of a and b. मुझे ये मिलेगा. So that now try and accept. This Harsh will be able to make you guys understand better. But है कि वो बाद में समझाएगा. But अभी के लिए है कि try and accept. It's basically to throw an error. अगर आपकी try block में कुछ problem हो रहा है तो let's say यहाँ पे try, it's basically a case of exception handling जो अभी बाद में आएगा. But try block में let's say I'm doing u 1 is equal to 2. तो अभी मैंने यहाँ पे u डिफाइन नहीं किया है, राइट? तो when I'm doing except and it gives the exception as error, और अगर मैं error print कर रही हूँ तो it throws this syntax this error कि tuple object does not support item system, right? Coming to dictionaries, this is also a similar concept but थोड़ा different है tuple and list से. डिक्शनरीज में सबसे तो मेन थिंग इज की एंड वैल्यूज यूज होते हैं. नाउ सपोज आप फोन बुक्स यूज करते हो, राइट? फोन बुक्स में व्हाट यू हैव द नेम ऑफ द पर्सन एंड यू हैव द नंबर, द फोन नंबर ऑफ देम. वैसे ही यू कैन से एंड डिक्शनरी एज द नेम सजेस्ट कि डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं एंड उनकी मीनिंग्स होते हैं, राइट? उनकी वैल्यूज होती हैं. वैसे ही हम डिक्शनरीज डिफाइन करते हैं एज की वैल्यू. इधर यू कैन सी कि कर्ली ब्रेसेस यूज हो रहे हैं एंड कर्ली ब्रेसेस में यू हैव की 1 एंड यू हैव वैल्यू 1. व्हाट दिस मीन्स इज यू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल. सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया d एंड इट इज इक्वल टू दिस डिक्शनरी. अभी इसमें पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3. दिस इज की एंड दिस इज द वैल्यू. तो की 1 इज पैरामीटर 1 जिसका वैल्यू इज 1.0. पैरामीटर 2 इज की 2 जिसका वैल्यू इज ट्रू. पैरामीटर 3 इज की 3 जिसका वैल्यू इज रेड, राइट? तो अब मैं जब प्रिंट करूंगी d एंड उसका टाइप, तो आई विल गेट द एंटायर d का लिस्ट प्रिंट, d डिक्शनरी प्रिंटेड एंड उसका क्लास विल बी डिक्शनरी और इट्स टाइप. Now अभी what if I want to extract a certain value of a key? मुझे की इधर है और मुझे उसकी वैल्यूज भी पता है, बट व्हाट इफ आई वांट टू गेट अ पर्टिकुलर की एंड उसका वैल्यू. फॉर दैट आई विल डू प्रिंट डी पैरामीटर 1. सपोज मुझे पैरामीटर 1 का वैल्यू चाहिए तो मैं प्रिंट करूंगी एंड डी का पैरामीटर 1 उसकी वैल्यू वो मुझे प्रिंट करके देगा विच इज 1.0. अभी सपोज इफ आई वांट टू चेंज पैरामीटर 1 का वैल्यू, पैरामीटर का 1 का पहले वैल्यू 1.0 था, बट व्हाट इफ आई वांट टू चेंज इट, तो मैं उसको यहाँ से चेंज करके 2.4 करूँगी एंड इफ आई प्रिंट द डिक्शनरी तब जाके वो नई डिक्शनरी क्रिएट करेगा एंड उसमें जो पैरामीटर 1 होगा दैट विल बी एज 2.4. आई होप दैट्स क्लियर एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी तुम लोग को फास्ट लग रहा होगा फॉर दोज हु आर जिनका फर्स्ट टाइम है, बट trust me थोड़ा practice लगेगा but you guys will get a hang of it. And okay, the last topic that I will be covering. Wait a minute. Yeah, wait a minute. So यहाँ पे Heath ने question पूछा, is the speed of accessing data from dictionary similar to hash maps in C++? Bro, C++ is always faster than Python as a language. So अगर तो language को compare करेगा तो hash maps in CPP वो fast होंगे comparative to dictionaries. So yeah, I guess your doubt is clear. okay, so the last topic that I will be covering, उसके बाद Harsh will take over. Strings and text formatting. You remember अभी तक हम जो भी print कर रहे थे text, those were all a part of the string, right? but हमने उसको in depth नहीं देखा था, तो इधर we'll get a brief on that. कि strings are delimited with double quotes. So when you're defining a string, now what exactly it's a string? It's basically a text that you want to show output के time. So suppose मैं कुछ लिख रही हूँ, like if I'm writing a value, but if I'm mentioning that value as area, कि मुझे area है and उसका output is this, तो area को मैं double quotes में जब add करूँगी तो that will become a string, right?
तो ऑब्वियसली इट गेट्स ईजियर स्ट्रिंग्स यूज करने के लिए बिकॉज इट ऑल्सो मेक्स इट क्लियर कि आपका आउटपुट है क्या, आउटपुट क्या बता रहा है बेसिकली, राइट. इसलिए हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं. So यहाँ पे you can see s is equal to test which is a string. Now most importantly string हमेशा double quotes में ही use होते हैं. And can you tell me कि हम string can we use numbers as strings? Yes or no? Yes. 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 So हम obviously numbers को भी strings की तरह use कर सकते हैं provided we put them under the double quotes, right? अगर हम strings अगर हमें numbers को strings की तरह use करना है तो हम उसको double quotes में add कर सकते हैं. इधर basic example है s अगर मैंने एक string लिया है and उसको मैंने value दिया है test, right? And if I want to print s and उसका type तो मुझे test print होगा and मुझे इसका class पता चलेगा which is a string. देन अभी स्ट्रिंग में भी ऑब्वियसली इंडेक्स यूज होता है. सो अगेन पाइथन में 0 से स्टार्ट होगा. तो इफ आई वांट टू जस्ट प्रिंट टी, मुझे अगर सिर्फ टी चाहिए आउटपुट में, तो व्हाट आई विल डू इज प्रिंट s0. 0 इज द इंडेक्स ऑफ द टेस्ट स्ट्रिंग एंड इसलिए सिंस टी इज एट द इंडेक्स 0 तो इसलिए मैंने टी प्रिंट किया है. प्रिंट अगर मैं s plus 42, हाँ अभी सिंस लाइक the question that I asked कि क्या नंबर स्ट्रिंग हो सकता है, of course हो सकता है. नंबर को मैं स्ट्रिंग बना सकती हूँ प्रोवाइडेड मैं उसको डबल कोट्स के अंदर डालूँ. इसलिए अगर मैंने प्रिंट s plus 42 किया है तो s obviously it's already a string, right? तो string plus string that can be added. इसीलिए since s is test and plus 42 करिए तो मुझे test 42 as output मिलेगा and यही मिला मुझे. अभी अगर प्रिंट में s, 42 कर रही हूँ, नाउ दिस इज क्वाइट बेसिक कि अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ s को भी और 42 को भी तो दोनों अलग अलग आएंगे, राइट? अलग प्रिंट होगा, पहले s प्रिंट होगा उसके बाद 42 प्रिंट होगा. दे आर नॉट कंबाइंड एग्जैक्टली, वो लोग अलग प्रिंट होंगे. इसलिए टेस्ट स्पेस 42 बिकॉज आई एम प्रिंटिंग देम बोथ अलग से. बट इफ आई वांट टू प्रिंट देम टुगेदर I'll do print s plus 42 and यही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि if I'm not using a string like not using a number as a string तो वो different अलग से वो print होगा. But if I'm using a number as a string तो it gets add up to the original text string that you're using. इधर मैं test use कर रही हूँ तो इसलिए वो test 42 इसके साथ add हुआ है. Now again a try except कि try block है, try block में let's say I'm writing print s plus 42. Now this is technically wrong. Can you tell me why this is wrong? Or if I'm using this s plus 42, so will this work or will this not? Okay, so s plus 42 अगर मैं कर रही हूँ, it will not work actually because string plus an integer will not give an output, right? दोनों अलग data types के हैं, तो unless you do the casting again, but अगर दोनों different data types के तो obviously वो add नहीं होंगे, string plus 42 नहीं होगा, which is why it will throw an error कि it can only concatenate strings and not integer. I hope you are understanding अभी तक क्या चला है. And we'll swiftly move to the last topic, format method, that I'll be explaining. And that is काफ़ी simple है. So format method में if you're doing a print statement and let's say एक मैंने again string use किया है test and then curly braces dot format 42. This basically means कि format के अंदर का जो भी value है it will get printed in the placeholder. This is called a placeholder. कि यहाँ पे curly braces act as the placeholder, basically a space to add the value which is being used in the format. तो अगर format contains 42 तो यहाँ पे test 42 आएगा because ये placeholder है और 42 placeholder के अंदर चला गया है. Similarly print, अभी print test with an integer, again a placeholder which is used for integers. This is a float placeholder, this is an exponent placeholder. And this is again a float placeholder but with a single decimal system, single decimal digit. तो अगर मैं
फॉर्मेट कर रही हूँ, फॉर्मेट के अंदर जो भी मेरे वैल्यूज़ है ये सब ये वाले प्लेस होल्डर्स के अंदर स्टोर होंगे. सो 4 goes into this integer placeholder, 3.141 goes into this placeholder, 3.141 goes into this, and 3.141 goes into this placeholder. एंड अभी इसीलिए अब यू कैन सी प्रिंट होगा तो वही सेम फॉर्मेट में प्लेस होल्डर की जगह वैल्यूज आ जाएंगी. बट हियर यू कैन सी कि ये वाली जगह में 3.141 था बट इट्स कमिंग आउट एज 3.1. दिस इज बिकॉज मैंने 1f यूज किया, 0.1f. दैट बेसिकली मीन्स कि डेसिमल अप टू 1 प्लेस ही वो दिखाएगा, विल नॉट गो अप टू द फर्दर डेसिमल्स, इसलिए उसने सिर्फ 3.1 शो किया. So that's it for now, guys. Abhi Harsh will take over. Koi questions hai, you all can obviously address those. And Harsh, I think you should take over now. Yes, yes. So समझ में आया अब तक जितना भी कराया था सब लोगों को? ऊपर ऊपर तो समझ में आया, थोड़ा ब्रशअप करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नहीं डेफिनेटली ये क्लियर करना भी था मेरे को. आज ये मीट अटेंड करने के बाद अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ऑनेस्टली कल का कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ओके, सो एक बार कोलैब फाइल खुद रन करके देखना, कमेंट्स लिखे हुए हैं, सब कुछ टॉपिक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सब कुछ लिखा हुआ है. सो एक बार पढ़ना वो एंड रिवाइज करना, जैसे कल जो लेक्चर फिर हम लेंगे तो वो तुमको अच्छे से समझ में आए. ठीक है? एनीवेज, let's move on to the next topic. We will get the recording on our mail ID. Yes, you'll get the recording. Community पे डाल देंगे हम लोग recording का link. Okay, so that would be by tonight, right? To revise if you want to go through again. Okay, yeah, tonight you will get the link recording. Okay, thank you. Yeah. So now we'll be moving to if else condition. So basics, core concepts and basics सब लोगों ने समझ लिए, सब लोगों ने कर लिए. Now we want to give you an output based on some conditions. ठीक है? तुमको चेक करना है कि कौन से conditions satisfy हो रहे हैं and उसके base पे we'll give you an output. So यहाँ पे as you can see initially हमने statement 1 and statement 2 को assign किया है if statement 1 is false and statement 2 is also false. So if statement 1 meaning कि अगर statement 1 true है, so you just print statement 1 is true. If statement 2 is true, then you just print statement 2 is true. And if statement 1 and okay, so पहले मैं तुम लोगों को explain कर देता हूँ कि if के बाद तुम लोग एक condition देते हो, then you guys have elif. Elif is another form of if only. ठीक है? तुम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं if भी लिख सकता हूँ. ठीक है? So यहाँ पे if, okay, so for 1 minute I'll just, yeah, so if statement 1 and if statement 2 कुछ भी आउटपुट नहीं आया. करेक्ट? क्यों नहीं आया? बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स थे. So I'll just write true here. Yeah. So यहाँ पे what do you think? What will be the output? Let me just run it. Yeah, statement 1 is true and statement 2 is true. Now why ऐसा क्यों आया? Because both the statements are true. Correct? So यहाँ पे हम लोग को now let's say अगर मैं इसको false कर दूँ and now if I try to run it again, now you can see statement 2 is true. Why? Because statement 1 को हमने false assign किया था. Correct? So yeah, अभी इसको वापस से I'll just bring it back to original. Harsh, could you zoom in the screen a little? Bas, Yeah. yes, thank you. So यहाँ पर now what is the purpose of elif, if, elif and else? ये पूरा का पूरा एक सिंगल ब्लॉक की तरह तुम लोग ट्रीट कर सकते हो. दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ इफ, elif and else. Okay, so if not this condition, then it will move to elif.
if not elif then it will move to else. So ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक की तरह ही ट्रीट हो रहा है. Whereas पहले जब मैंने 3 if डाले थे, सॉरी 2 if डाले थे मैंने, तो it was, it was considering it as 2 different blocks. Okay, एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को. अगर यहाँ पे भी मैं if डाल दूँ, so what do you think what will be the output of this one? सॉरी, या मेरे को बताओ क्या आउटपुट होगा. एक सेकेंड. या सॉरी, ठीक है. ओके, सो नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ठीक है, सो नाउ स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड आवर आउटपुट विल बी एल्स वाला कंडीशन. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो पहला इफ कंडीशन था, दिस वन, इसको उसने एज अ सिंगल ब्लॉक ट्रीट किया एंड इसको उसने एज सेकेंड ब्लॉक ट्रीट किया. आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल. तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Wait a minute. Yes. Okay. So that is why to make this entire thing as a whole block we use elif. तुम लोग को चाहिए तो you can also write if तुमको 3 बार if लिखना है, 5 बार if लिखना है, doesn't matter, you can write that, but then वो अलग अलग block ही create होगा. Okay. Can you repeat? Yes, I can repeat. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को हमने बूलियन वैल्यूज असाइन किए हैं एंड उसके बाद हमने इफ कंडीशन चलाया है. ओके, वी आर रनिंग द इफ एल्स कंडीशन. सो दिस एंटायर थिंग इज वन सिंगल ब्लॉक. इनिशियली इट इज चेकिंग, just go and check if statement 1 is true or not. Statement 1 is not true because statement 1 को हमने false assign किया. Then it is going to the elif block. It is checking कि elif statement 2 is true. Just check if statement 2 is true or not. No, again statement 2 is not true. So finally, when both the conditions are false, it will move to the else condition. It will print statement 1 and statement 2 are false. Okay. Now, also one thing which is very important. If I just write essay, wait a minute, yeah. Do you think यहाँ पे print होगा और error show होगा? Error, correct. यहाँ पे error show होगा because Python में you have to make sure one thing कि तुम indentation का like एकदम carefully handle करो indentation. So what is indentation? After this colon, when you click on the enter button, it automatically leaves some space for that. Correct? That is indentation. So you have to make sure कि तुम्हारा indentation correct हो, because अगर वो correct नहीं होगा तो तुमको error बताएगा. Similarly, I guess this is the correct indentation. Let me just run it. Yeah. So you have to make sure कि तुम indentation proper रखो. ठीक है? Now we'll go to this one. So यहाँ पे what we are statement 1 again. Statement 1 equals to statement 2 equals to true. We have assigned values to the variable statement 1 and statement 2. यहाँ पे what we are using is we are using if statement 1. So first of all condition check होगा कि क्या statement 1 true है या नहीं है. Yeah, statement 1 is true. Our condition is satisfied. Now it will move to this if condition. ये important है. You have to make sure कि ये दूसरे if statement 2 वाले if condition पे तभी ही move करेगा when the first condition is satisfied. Why? Because this is nested if else condition. Okay. So this is not like this one. If, elif and else. Okay. यहाँ पे nested conditional हम use कर रहे हैं. If else condition हम use कर रहे हैं. Okay. I hope इसमें प्रॉब्लम नहीं हो किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? No doubt still now. Yeah, cool.
Yeah, so this was that thing जो मैं बता रहा था indentation का. So यहाँ पे you guys can see this is a bad indentation. Oh, bad indentation डाला ही नहीं. ठीक है, मैं डाल देता हूँ. This is bad indentation, and you guys can see indentation error. So you have to maintain the indentation very properly. Okay. Now, let me just do one thing. Let me ask you guys, what do you think? What will be the output of this? Now tell me, what do you think? What will be the output of this one? This entire thing. सानिका मीटिंग थोड़ा लंबा चलेगा आज. I guess 9 o'clock तक. 9 o'clock तक I'll try to finish it, but आज थोड़ा we are covering the basics now, so थोड़ा लंबा चलेगा मीटिंग. Correct. Still inside the if block. Why? Okay, so this is because statement 1 is false. So उसने चेक किया कि if statement 1 is true or not. वो चेक कर उसने चेक किया. No, statement 1 is not true. So since statement 1 is not true, ये print statement execute नहीं हुआ. Okay, but this print statement, this is not a part of this if statement. Why this is not a part of this if statement? Because of the indentation. So you guys can see this print is aligns with the if statement. Okay, and if अगर मैं ऐसे करूं तो nothing will print, कुछ भी print नहीं होगा, क्योंकि if condition execute ही नहीं हुआ, because originally statement 1 is false. So I hope I am clear here. Yeah, तो ये वही है जो अभी मैंने explain किया है, वही था, exact same. Let me just run it outside the if block. Yeah. So now I'll come to for loop. So let's say if you want to print numbers till 10, so print 1, print 2, print 3, ऐसे 10 times थोड़े print करूँगा. चलो ठीक है, तुम लोग कर भी लोगे, फ्री बैठे हैं सब लोग, करना क्या है. बट अगर मैं बोलूँ कि 1 million times print I wanted to ask one question. Sorry to no, interrupt. go on. I just wanted to know when we are going to end this meet, because related to my class project, I have to attend another meet at 8:45. Okay, so I'll try to end this meet by 9. See if it is urgent, then you can leave the meet. We'll provide you with the recording. But आज basics cover कर रहे हैं, so थोड़ा 9 o'clock तक जाएगा meet. Okay. So yeah, again. So we have this list. Okay, for loop. So we have this list. 1, 2, 3. Now for x in 1, 2, 3 list. So basically, यहाँ पे x is a variable which is accessing all the elements of the list. So if you run this, यहाँ पे output 1, 2, and 3 आएगा. So initially x has accessed the element at index 0, which is 1, then index 1, which is 2, and then at element at index 2, which is 3. So this type of loop is called for each loop. So you are accessing a list or a dictionary or a tuple, and you are accessing each and every element of that list. Okay. Please make it zoom. और भी zoom करूँ मैं? Wait a minute. Is it fine now? Is it fine? Yeah. Okay. Cool. So now initially I have this sentence which is an empty string. Now again I have this list with a couple of strings in it. So यहाँ पे basically क्या हो रहा है कि what this is doing, मैं तुमको explain कर देता हूँ. So initially starting में word variable में Python as a value will be assigned because it is the first element. Okay, and now then we are performing the operation कि sentence equals to sentence plus word plus space.
Okay, so initially sentence variable was empty. Now word आ गया, which was Python initially, and then we added a space. Then increment होगा, for will be assigned to the variable word, and then the statement will be send Python for. Let me just do one thing. तुमको समझ में आ जाएगा. तो समझ में आया क्या हुआ? So initially word was Python because the first word was Python. Then the second word was for. But since we have already assigned Python in the sentence variable, तो वो भी print हुआ. Then third time में Python for this part was assigned to the sentence variable, and we added data because data is word. समझ में आया? ये चीज समझ में आया? This is very important. ये तुमको समझ में आया? Please repeat once. Please repeat once. Okay. ठीक है. So what here is happening is कि यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें I have 4 words. ठीक है. Now जैसे जैसे loop access होगा, जैसे जैसे loop progress होगा, so initially word will be add Python. Or let me just do one thing. Word. ठीक है. हाँ. So we have 4 words, and at every iteration, at every iteration, the word पे different variables आए हैं. Like word variable में different words आए हैं. So initially the first element of the list was Python. So initially word में Python आया. Okay, so word में Python assign हुआ. Then दूसरा loop हुआ. So this is a loop. Okay, so ये loop तब तक चलेगा जब तक ये list complete नहीं हो जाती. आई गेस ये समझ में आएगा कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक लिस्ट कंप्लीट नहीं होती. ये लूप तभी ही स्टॉप होगा जब सारे एलिमेंट्स लूप में खत्म हो जाएंगे. ये समझ में आया दिस थिंग? Yes, yes. हाँ. ओके. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज के फर्स्ट वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द लिस्ट इज पाइथन. सो पाइथन वर्ड वेरिएबल में असाइन हुआ एंड हमने उसको प्रिंट करा दिया. नाउ दूसरा इटरेशन हुआ. नाउ द वर्ड इज फॉर वर्ड में असाइन हुआ, हमने फॉर को प्रिंट करवा दिया. एंड देन द थर्ड वर्ड वाज डेटा वर्ड वेरिएबल में असाइन हुआ, सो हमने डेटा को भी प्रिंट करा दिया. एंड एट लास्ट साइंस के बाद कोई वर्ड नहीं है, सो ऑटोमेटिकली लूप एंड हो गया. एम आई क्लियर? Yes. यस. सो हमने अलग अलग वर्ड्स को एक्सेस करके एक सिंगल सेंटेंस में उसको एज अ प्रॉपर सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया. एंड देन वी हैव फाइनली एग्जीक्यूटेड दिस कमांड टू प्रिंट द एंटायर सेंटेंस विच इज पाइथन फॉर डेटा साइंस. तो तुम देख रहे हो कि कैसे एक लिस्ट में जो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स थे उसको हमने एक सिंगल स्टेटमेंट बनाया. आई होप आई एम क्लियर नाउ. Yeah, okay, so moving on. So this was for each loop. Now we'll move on to how many times do ये तो जैसे ये loop तब तक access ये loop तब तक चल रहा था जब तक list में numbers थे. Now what if we want to customize the iteration of the loop? So for that we have this for loop. सो यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, ये चीज़ है ना, आई टेल यू, ये चीज़ तुम लोग को अभी थोड़ा कंफ्यूज करेगी कि वाई फॉर एक्स इन रेंज. दिस इज जस्ट द सिंटैक्स फॉर पाइथन. ठीक है, तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे सो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि दिस इज सिंटैक्स. ये ऐसे ही लिखते हैं. दिस इज हाउ यू राइट फॉर लूप. ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. सो या, so now for x in range 4. now what is this 4 range? 4 is a number कि हमको कितनी बार लूप को आइटरेट करना है. okay, so initially the value of x will be 0. so initially the value of x will be 0 and we'll iterate it 4 times. so we'll just see. so yeah,
4 0 से स्टार्ट हुआ एंड 0 1 2 3. ऑल्सो नोट दिस वन थिंग कि ये इतने टाइम से आइटरेट, लाइक यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, सो इट विल आइटरेट 4 minus 1 times. ओके, सो इट विल बी आइटरेटिंग टिल 3. ये समझ में आया? हाँ. सो जितने भी नंबर्स हैं, लाइक इफ आई जस्ट राइट 5 हियर, सो इट विल, ये 4 तक आइटरेट होगा. सी 1 2 3 4. So 5 will not be included here. Okay. Again, 2 to 6. Just tell me, what do you think? What do you feel like? ये 2 to 6 क्या कर रहा होगा ये? Anyone? Two to five elements will be printed. Yeah, exactly. So initially पहले for loop में क्या हो रहा था कि default value 0 से assign कर रहा था. But what if we want to customize it? हमको custom value देना हो कि नहीं, तो 0 से start मत कर, तू 2 से start कर. So we can write कि 2 से start होगा and then कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा ये. No, exclude हो रहा है. Yeah, exactly. 6 exclude होगा तो 5 तक जाएगा. तो 2 3 4 5. I guess ये print होगा. Yep. 2 3 4 5. हाँ, and this one. Okay. So now I guess ये 1 and 12 का तुम लोग को concept समझ में आ गया होगा. Now what is this 3? So 3 is how कितने बार increment करना है. So like initially 2 से 3. Guys, I'm really sorry for this, but ठीक है. So initially the value was 1. Now the value is 4. Why 4? Because यहाँ पे 3 digits या 3 numbers से increment होगा. So initially the number was 1. Now the number will be 4 because उसने 3 बार increment किया. Till 9. Why till 9? तो 7 है, तो अगर 7 से अगर हम लोग 3 times increment करेंगे तो it will be till 10 ना? Vivekanand. Yeah. So that is it. So initially it will print 1 and then 3 बार increment किया, then it will be print 4, then वापस से 3 बार increment किया, it will print 7 and then finally 10. ये समझ में आया? Yes. Okay, cool. So ये कुछ भी नहीं है. This is, इसमें just initially we were just passing x or word or nums. Okay, now we are also passing idx. So idx is nothing but if you want to know the index of each and every element, then you use 2 variables and then you use this inbuilt function called enumerate. So enumerate will just provide you with the index. So like -3 का index was 0, -2 का index was 1. Okay, so ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. Okay, so now we'll go to while loop. While this is also very easy. So initially ये क्या है? Can anyone explain me what is this? जो highlight किया मैंने. Initialize to I is equal to 0. Yeah, exactly. हमने बस initialize किया है, nothing more than that. Now what this statement means कि जब तक I का value 5 से less है, तब तक तुम ये loop चलाना. This is what this statement means. Okay. So while I is less than 5, तुम यहाँ पे जाना. So we are printing I. What is I? I will start from 0. So यहाँ पे you can see 0, 1, 2, 3, 4. And then we are incrementing. So increment करने के लिए you can just use I plus equals to 1. Or you can use I plus plus. Okay, wait a minute. That was a C plus plus syntax. Yeah, this is the second way. I is equal to I plus 1. You can use this, or you can simply write I plus equal to 1. This is also fine. Okay. Now what will happen if I just remove this? अगर मैं I को increment ही नहीं करूँ, so what will happen? What do you guys think? Yeah, exactly. ये एक infinite loop चलेगा
because I को हम इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे, so every time it will check the while statement, it will see कि I 0 है, okay print कर दो, then again I 0 है, okay print कर दो, so infinitely ये लूप चलेगा. So मैं रन नहीं करूँगा because मेरे को मेरा प्रोसेसर प्यारा है. So yeah, ठीक है. Now we'll come to this try catch block. So by the way, this is a very good practice in web development. So, like web development, whenever you are dealing with the backend. So yeah, web development, whenever you are dealing with the backend, you use try except. So what it is doing is, तुमको तुम्हारा जो भी लॉजिक लिखना है तुम तुम्हारे ट्राई में लिखो, एंड देन इफ यू गाइस हैव एनी एरर देन उसको तुम सिंपली एक्सेप्शन में प्रिंट कर सकते हो. सो एक्सेप्शन इज बेसिकली to handle the errors, okay, because let's say you are using a website and website में तुमने कोई गलत बटन क्लिक कर दिया, कोई गलत पेज को एक्सेस करने के लिए गए, so you won't be वो ऐसे अच्छा प्रैक्टिस नहीं हुआ कि तुम लोग को एक रेड कलर का एरर दिखाएगा कि दिस इज ऐसे पूरा बिग एरर. तो so for that we use try and accept. try catch block है ये. But हाँ, this is online, okay, it's okay. ये इसमें डाउट है क्या किसी को? Why do you use try catch? ये रन में करता हूँ, बट कंसेप्ट में डाउट है क्या किसी को? Can you explain once more? कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ओके ठीक है, मैं रन करके दिखा देता हूँ. ठीक है, ओके. व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले तुमने लिस्ट को प्रिंट करवाया विच वाज 1 2 3, देन उसके बाद तुम चेक करो कि a1 इक्वल्स टू 3, ओके, एंड देन प्रिंट कमांड, ओके. सो a1 विच वाज 2 इज नाउ 3. तुमने a1 में 3 असाइन कर दिया एज वैल्यू, ओके Okay. या. सो ये ट्राई सक्सेसफुल विच मीन्स योर कोड इज रनिंग परफेक्ट. तुम्हारे कोड में कोई एरर नहीं है, बिकॉज व्हाई, बिकॉज वन इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर लिस्ट. हाँ. या अभी इधर क्या होगा, जस्ट कमेंट दिस वन आउट. नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा. व्हाई, बिकॉज इन द ट्राई ब्लॉक you are trying to access the sixth index, sixth index है ही नहीं. 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है एंड 2 इंडेक्स है, 6th इंडेक्स ही नहीं है, ओके. सो 6th इंडेक्स नहीं है, सो यहाँ पे एरर आ गया, ये ट्राई ब्लॉक पे एरर आ गया. सो जब भी एरर आया देन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन एज एरर, तो जो भी ये वाला यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो होगा. तो हमने क्या किया, हमने बोला प्रिंट कर दो एरर, जो भी एरर आएगा जस्ट यू प्रिंट इट आउट, ठीक है. अच्छा, या तो ये एरर को एक्सेप्शन ही बोलते हैं. हाँ हाँ, बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन है, बट वी आर सेइंग कि एक्सेप्शन एज एरर, तो यू कैन जस्ट राइट एनी, हाँ, यू कैन वो राइट तो TRR एज वेल. सो या, ठीक है, थैंक यू. okay, so now functions. What if I want to use a bunch of code for let's say 100 times? तो मैं 100 टाइम्स थोड़ी एक बार लिख के थोड़ी बाकी के 99 टाइम्स कॉपी पेस्ट करने बैठूंगा. सो बहुत वो क्लटर्ड भी हो जाएगा, आर कोड विल बहुत बेसिकली कोड क्लटर हो जाएगा. सो फॉर दैट वी यूज फंक्शन. सो व्हाटएवर लॉजिक, जो भी लॉजिक हमको लिखना है, हम वो लॉजिक को उस लॉजिक का एक फंक्शन बना देते हैं, एंड देन व्हेनेवर वी वांट टू यूज दैट ब्लॉक ऑफ कोड वी जस्ट कॉल दैट फंक्शन, ओके. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पे def fun 0. So this is the what do you call syntax of creating a function. And यहाँ पे again one more thing, indentation is very important. So यहाँ पे तुम indentation maintain करना, because then यहाँ पे फिर error आएगा if you won't maintain the indentation, ठीक है. So here we are calling the function कि you just go and you call fun 0, and fun 0 के अंदर कोड क्या है, just print fun 0 just prints. So
फंक्शन का बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि तुम एक फंक्शन बना दो, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो, एंड देन व्हेनेवर यू वांट टू यूज दैट कोड यू जस्ट कॉल दैट फंक्शन. तुमको ऐसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 100 टाइम्स उसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आई गेस ये समझ में आएगा फंक्शन का बेसिक समझ में आएगा. व्हाई डू वी क्रिएट फंक्शंस? Yes. Yeah. Now, what if we want to print something in this function? So as you can see, I have a list here. Wait a minute, let me just do one thing. Yeah. So we have one list called one, and then there is an int value, there is a string value, there is a boolean value. So list में हमने एक list create किया, and then we are passing that list in a function. So in functions, you guys have arguments which you can use to print something. Like let's say I want to access this list here inside the function. Now ये list को मैंने function के अंदर define नहीं किया. As you can see, ये list को function के बाहर define किया हमने. But what if I want to use this list inside the function? So for that I'll pass this a inside the function, and then यहाँ पे मैं उसको as l receive कर सकता हूँ. So see, this doesn't matter whether I write a l, it doesn't matter. Okay, I can even write o, ठीक है, but then I'll have to write here. ठीक है. So yeah, as you can see, इसने list print किया and उसका length print किया. List function के बाहर डिफाइंड था, बट हमने उसको as arguments पास किया, and then हमने उसको function के अंदर access किया. Is it clear? वो आप सेकंड लाइन लास्ट लाइन लिखी क्या है? This one, ये a वाला. यस यस. ये मैंने सिर्फ एक लिस्ट को डिफाइन किया है जिसमें इंटीजर है, स्ट्रिंग है एंड बूलियन वैल्यूज है. ओके, बस एक लिस्ट को इनिशियलाइज किया है मैंने, एंड देन मैंने फंक्शन में वो ए वेरिएबल को जिसके अंदर लिस्ट है उसको पास किया. कैन यू एक्सप्लेन द एग्जांपल वंस अगेन? ओके, ठीक है. लेट मी जस्ट डू वन थिंग. हाँ, आई गेस इससे बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा तुम लोग को. कैन वी ऑल्सो पास एनी नॉर्मल वेरिएबल? या यू कैन पास वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन. वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन. हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास किए हैं. वो पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमको फंक्शन के अंदर यूज करना होता है, बट वो फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं. आई होप ये लाइन तुमको समझ में आया होगा. हम कोई भी फंक्शन के अंदर वही पैरामीटर भेजेंगे या वही वेरिएबल पास करेंगे जो फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट करता होगा, फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता होगा. ओके, सो लाइक दिस, इन दिस एग्जांपल ए है जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया हमने, उसको हमने पास किया एंड देन हमने उसको फंक्शन के अंदर यूज किया. आई गेस अभी क्लियर हो गया होगा. Now help is nothing, it is just an inbuilt function. Okay, ये तुमको बस फंक्शन के डिस्क्रिप्शन देता है, लाइक वॉट एवर फंक्शन दैट यू हैव क्रिएटेड वो तुमको बस उसका एक डिस्क्रिप्शन दे. इसको ये विल अंडरस्टैंड दिस बेटर हियर. ओके, सो कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज दिस? ये क्या है? Exception. सॉरी, X to the power. X raised to 2. yeah, x raised to 2, correct. So यहाँ पे we have हमने स्क्वायर में पास किया 12 as a number. So you can pass variable, you can pass number, you can pass string, you can directly pass list. ठीक है, it is completely fine. हमने यहाँ पे इस फंक्शन में हमने x को रिसीव किया and then we are returning the square of x. Okay, so function में हम return भी कर सकते हैं. Suppose we want to return something to the main function, like this is
whatever you guys see here, this is the main function and this is the user created function. So अगर हमें main function को वापस से भेजना कोई value जो हमने एक user defined function में create किया, then we can do it by return. So we can just return x का square, उसको हम यहाँ पे res में store कर लेंगे and then we'll print it. ये समझ में आया? Print, हाँ, you can do it. Print square 12, you can do it as well. It is completely fine. ठीक है? And now, what is this help of square? Help क्या कर रहा है? It is telling you give help on function square. ये तुमको बता रहा है कि तुमको square return square कर रहा है तुम्हारे नंबर का. Okay. And similarly, यहाँ पे help is telling you कि help on function powers. So यहाँ पे since we are not just doing the square, we are also doing cube and raised to 4. तो यहाँ पे वो square नहीं लिखा है इसलिए power लिखा. I guess इससे तुमको help function clearly समझ में आएगा कि why do we use help function. Usually we don't usually use it too much, but since it is an inbuilt function, it is better for you guys to know what is it. Okay. Yeah. Then this is nothing. इसमें you are just printing the type. What is the type of res? So the type is tuple. I want you guys to run this. Okay. तुम लोग को ये समझ के करना because अभी तुम लोग के लिए बहुत fast होगा. I know it will be really fast for you guys. So एक बार इसको अच्छे से बैठना, रिवाइज करना. मीटिंग लिंक तुमको दे देंगे, कोलैब फाइल दे दिया. एक बार अच्छे से इनको रन करना एंड समझना. ओके. Now we come to arguments. Okay. बहुत ही बेसिक है ये. यहाँ पे we have fancy power and then we are passing 5. Okay, यहाँ पे हम 5 पास कर रहे हैं, but यहाँ पे हम 3 arguments या 3 parameters accept कर रहे हैं. So that won't work for the function. However, power will. Yeah. Okay. ठीक है. यहाँ पे हमने कितने पैरामीटर्स पास किए? यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया है, बट यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो हाउ दिस इज वर्किंग? सो ये 2 पैरामीटर्स के लिए इट इज चेकिंग कि अगर फंक्शन कॉल करते टाइम हमको p और debug का वैल्यू नहीं मिला तो तुम एज्यूम करके चलना कि p is true and debug is false. ओके. सो व्हाट इट इज हैपनिंग कि हमने सिर्फ 5 पास किया ना, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल के टाइम पे इसने ऑब्जर्व किया कि एक ही पैरामीटर को पास किया. सो आई विल असाइन दैट पैरामीटर टू x एंड देन आई विल एज्यूम दैट p इज इक्वल टू 2 एंड debug इक्वल्स टू false. ये समझ में आया तुमको कि हमने पास एक ही पैरामीटर किया बट एक्सेप्ट 3 पैरामीटर हुए हैं, क्योंकि 2 पैरामीटर को हमने बोल के रखा कि अगर ये पैरामीटर्स को पास नहीं किया तो तुम इसको डिफॉल्ट वैल्यू को 2 एंड false समझ लेना रिस्पेक्टिवली. ओके. सो यहाँ पे व्हेन यू रन दिस, सो तुमको इसको रन ही नहीं किया, सॉरी. हाँ. सो यहाँ पे फर्स्ट वाले का वैल्यू 25 है. क्यों? क्योंकि इसने इनिशियली p को 2 एज्यूम किया एंड देन इफ कंडीशन चेक हुआ कि if debug equals to true, but no, debug here is false because by default it was false. Correct? So इसने debug का वैल्यू प्रिंट नहीं किया एंड देन इसने सिंपल x raised to power 2. Why 2? Because default में it was 2. So ऐसे 25 आया एंड इन सेकेंड वन we got 125. आई होप अगेन तुमको समझ में आएगा 125 कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे हमने p का वैल्यू डिफाइन करके भेजा, तो उसने प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं लिया, उसने वो वाला वैल्यू लिया जो हमने उसको पास किया, विच वाज
3. Debug is nothing, it's just a normal variable. कुछ भी लिख दो चलेगा, it doesn't matter, you just write s, just write s, it will split it simple. Okay, आ रहा हूँ मैं, इस पे आ रहा हूँ. सो यहाँ पे हमने p का वैल्यू 8 असाइन किया, x का वैल्यू 2 असाइन किया एंड debug इक्वल्स टू ट्रू किया, जो तुमने अभी लिखा कमेंट में, मैसेजेस में. सो यहाँ पे नाउ वी आर टेलिंग कि debug इज नॉट फॉल्स, ओके, debug इज ट्रू, बट सिंस मैंने इसको s कर दिया, आई हैव टू मेक दिस s एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू रन. ठीक है, अभी यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने s को बोल दिया कि s ट्रू है. सो यहाँ पे s का फॉल्स वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स था, वो इसने नहीं लिया, इसने मेरा वाला वैल्यू लिया विच वाज ट्रू. एंड देन इसने चेक किया कि if s equals to true, yes, if s is equals to true, so उसने अंदर वाला स्टेटमेंट प्रिंट किया एंड देन रिटर्न भी किया. ये समझ में आया तुमको? एक बार वापस समझा. एक बार वापस समझा. ओके, ठीक है. ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला वापस समझाऊं ना मैं? हाँ ऊपर वाला समझा दिया. ठीक है, ओके. सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को ना वैल्यूज असाइन कर दी, हमने कुछ भी डिफॉल्ट नहीं रखा है. ठीक है. सो नाउ whenever you are passing this, so वहाँ पे ऊपर जाके वो चेक कर रहा है कि p equals to 8. सो इनिशियली हमने बोला कि अगर p को कोई वैल्यू असाइन नहीं होना, so तुम उसको 2 कर देना, बट सिंस वी हैव असाइंड कि नाउ p is equals to 8, and similarly we are doing it for s and that similarly we are doing it for x. हमने सबका वैल्यू प्री डिफाइन करके भेजा कि s का वैल्यू ट्रू है, x का वैल्यू 2 है एंड p का वैल्यू 8 है. सो यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखा था ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बिकॉज हमने ऑलरेडी डिफाइन करके भेजा था, हमने असाइन करके भेजा था वैल्यूज को. ओके, या सो नाउ सिंस s इज ट्रू, बिकॉज हमने ट्रू ही सेंड किया है, सो यहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है, जो भी उसके अंदर का कंडीशन है प्रिंट वाला, वो प्रिंट कर रहा है. ओके, थैंक्स. एंड तुमने यहाँ पे एक और चीज नोट किया होगा कि यहाँ पर x है, p है एंड s है. सो यहाँ पे ऑर्डर इज x p s, बट नीचे मैंने p x s किया है. सो इफ यू आर डिफाइनिंग कि p का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है, s का वैल्यू ट्रू है, सो इट डजंट मैटर कि तुम कोई भी ऑर्डर में पास करो. ठीक है, आई होप दैट इज लिखा चलेगा. क्या ये तभी चलेगा जब ऑलरेडी डिफाइन किया हो तुमने. ठीक है, नहीं किया तो नहीं चलेगा. नहीं, अगर तुमने नहीं किया, लेट्स से आई जस्ट पास दिस 2 4 and false. यहाँ पे क्या हुआ पता है, इसने s का वैल्यू फॉल्स लिया, इसने p का वैल्यू 4 लिया एंड इसने x का वैल्यू 2 लिया. सो अगर हम डिफाइन नहीं करके भेजेंगे कि व्हाट इज p, व्हाट इज x एंड व्हाट इज s, तो हम जो ऑर्डर में भेजेंगे वो जिस ऑर्डर में रिसीव करेगा, जिस ऑर्डर में सेंड करेंगे वो वही ऑर्डर में रिसीव करेगा. लाइक इसमें फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, सो ऑटोमेटिकली इसका फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी. या रिटर्न विल वर्क, इसलिए रिटर्न वर्क कर रहा है, इसलिए हमको 16 आउटपुट आया, अदरवाइज 16 आउटपुट आता ही नहीं. ओके, आई गेस ये समझ में आया होगा. हाँ, ओके, ठीक है, ये सबको समझ में आया. एक और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पेंडिंग है, बट आई गेस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज बहुत लेट हो गया है अभी, ऑलरेडी 15-20 मिनट्स इतना लेट हो गया. सो वेदांत, ये कल कवर करवा लेना पहले ये. ठीक है, ठीक है, क्लासेस ना, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो कल पहले ये टच कर लेंगे एंड देन उसके बाद विल मूव टू पांडास. ठीक है, I'll let Ahan know. If he is not able to do that, then I'll take it. ठीक है, नो इश्यूज, चलेगा.
Is the recording available? Yes, the recording is available. तुमको आज रात को मिल जाएगा recording. ठीक है? I hope this was a productive session for you all. ठीक है? तुम लोगों को कुछ सीखने मिला एंड इसको रिवाइज करना एक बार अच्छे से. हम लोगों ने तुमको एक जिस्ट दिया कि हाउ द लैंग्वेज वर्क्स, व्हाट आर द इनबिल्ट फंक्शंस, और भी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है पता है, और मैं सारे कवर कराने चाहता तो 15 दिन से भी ज़्यादा लगता. ठीक है? सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड जो भी पढ़ाया एंड विल कंटिन्यू. और अभी तो और 6 दिन बाकी है. सो आना सब लोग, एंड अभी ज्वाइन किया है. सिंस यू गाइज हैव स्टार्टेड, it will be really good for you all कि अगर तुम कंटिन्यू करो इसको. ओके, सो यस, रिवाइज करना एंड देन I'll see you guys tomorrow. You all can leave. Okay, this was it for Thank today. you. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much. Thank you guys Good night. for joining us. Thank you. Thank you. Good night. You both guys did really well, man. Speaking for 2 hours straight is not a joke. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. Vedant. Thank you. Welcome. Thank you. Hoping to see you guys tomorrow.